So hello everyone, myself Priyanka Mohite. I have secured all India rank 595 in UPSC Civil Services 2023, and I am selected into Indian Police Service, that is IPS, Maharashtra cadre. Fortunately, I have got my home cadre, and I'll join my training soon in the month of October. I'll first start with my journey of UPSC. So it started when I was in 12th standard. Basically, I have completed my basic schooling from Maharashtra, from Nasik district, and then I got selected in 6th standard in Jawahar Navodaya Vidyalaya, Khedgaon, Nashik. And when I was in 11th standard, then the thought came in my mind that I should pursue my career in civil services. And this basic thought came when my school principal from Navodaya introduced me to the field of civil services. Sir was of the opinion that Priyanka, I feel you have good command over some qualities that are required for a civil servant, and he literally pushed me to pursue my career in civil services. I completed my 11th and 12th standard from science background, CBSE, and then the thought came कि I should shift my field so that it would be convenient for me. I would get limited more amount of time to prepare for civil services. So I shifted my field from science background to arts. I pursued my graduation from Bachelor of Arts, that is in political science. Political science and international relation was my special subject. Uh, और फिर उस सब्जेक्ट को परस्यू करते करते मैंने अपना यूपीएससी का प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दिया था. फर्स्ट ईयर मेरा जो फर्स्ट ईयर था उसमें आई स्टार्टेड विद बेसिक एनसीईआरटीज रीडिंग विच इज मस्ट फॉर प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी, क्योंकि व्हाट आई फील कि एनसीईआरटीज आपको वो बेस्ट प्रोवाइड करते हैं जिसके बेसिस पे आप अपना जो फाउंडेशन है वो बिल्ड कर सकते हैं टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज. NCRTs, what you can learn from NCRTs is, I feel ki first thing from NCRTs you can learn how to develop that language that is required for answer writing, the kind of simplicity that is required in your mains answers. Another thing that is important and that is being provided by NCRTs, I feel the content. Uh, there are a lot of examples where we can see कि UPSC has picked direct questions from NCRTs, especially from history and geography. So I would suggest for those who are preparing for civil services कि you should go for NCRTs first. Basically 6 to 12 standards, and most importantly 11th and 12th standard NCRTs must. अनदर थिंग दैट आई वुड सजेस्ट कि एनसीईआरटीज में से आपको क्या और लर्न करना चाहिए, तो उनका जो लैंग्वेज है, द वे दे आर प्रेजेंटिंग देयर थॉट्स थ्रू एनसीईआरटीज इज इम्पॉर्टेंट. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग आई वोंट सजेस्ट कि यू शुड प्रिपेयर micro notes of every NCERT from 6 to 12, but what you can do कि you can just highlight the things that are important from NCERT. So that I have completed my basic NCERT in the first year itself. Then in the second year, what I have done, I have gone through basic coaching. I was preparing from Pune itself. There are a lot of thoughts that come into people's mind, students' mind, whether we should prepare for UPSC from our native place or we should go to Delhi. What I feel ki it's not necessary whether you should go to Delhi or you should prepare from particular place, because I feel it's not about place. It's about your level of dedication, your consistency, and your confidence. So what I thought ki I won't be able to be that much confident, or I won't be able to that much, I won't be that much comfortable in Delhi, considering the level of climate extremities that are experienced in Delhi, and on the contrary what we experience in Maharashtra. So I decided that I'll prepare everything from Maharashtra only. So I was in Pune in the second year of my graduation. मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था लोकल पुणे में, भगीरथ एकेडमी नाम से, और फिर वहां पे मैंने एक साल का पूरा कोचिंग लिया. आई यूज टू गो टू कोचिंग एट 8 AM इन द मॉर्निंग एंड आई यूज टू एंड इट इन 6 PM. So पूरा दिन I was just consistently, it was one way process. I was just taking things how UPSC, what UPSC consists of. In fact, it was so basic that I started with the full form of UPSC. I was so clueless about UPSC, so I started with every basic minute detail. कोचिंग में जाके मैंने पहले पूरा जीएस कवर किया. मॉर्निंग शिफ्ट में उनका जीएस का कोचिंग होता था, फिर आफ्टरनून स्लॉट में
ऑप्शनल भी मैंने कवर किया था। तो पूरा 1 साल था जब मैंने अपना एंटायर प्रिपरेशन का जो जिस्ट था, फिर कोचिंग में मैंने व्हाट आई हैव डन, तो फर्स्ट थिंग मैंने पूरा सिलेबस कवर कर लिया। सेकेंड थिंग मेरा था कि सो इट एज इट वाज वन वे प्रोसेस, तो मेरा फोकस रहता था नोट्स मेकिंग पे। तो रनिंग नोट्स मैंने ज्यादा से ज्यादा बनाए थे। तो अगर आज भी मेरे को कोई बोलेगा कि प्रियंका यूपीएससी करना है, तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा, तो वो रहेगा मेरा बेसिक फाउंडेशन वाला नोट्स, जो मैंने अपने कोचिंग के फर्स्ट ईयर में किया था। 1 साल का बैच मोस्टली आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर 1 ईयर वाला बैच। द रीजन बीइंग कि 1 साल में यू कैन कवर द एंटायर सिलेबस, और उसके बाद यूपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ स्टडी। तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंस्टेड ऑफ 3 इयर्स का इंटीग्रेटेड बैच, आई वुड सजेस्ट यू शुड गो फॉर 1 ईयर वाला बैच, क्योंकि उसमें आपको सिलेबस समझ में आता है। फिर देन यू कैन वर्क बेस्ड ऑन योर सेल्फ स्टडी। सो ऐसा मेरा सेकेंड ईयर था जब मैंने पूरा नोट्स कवर कर लिए थे, बहुत सारे रनिंग नोट्स बना लिए थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरा फोकस था ऑप्शनल सब्जेक्ट पे। ऑप्शनल पे मैंने बहुत अच्छी कमांड मतलब कवर कर लिया था, पूरा ऑप्शनल के नोट्स रेडी थे, तो फिर इट वाज मोर हेल्पफुल फॉर मी। एंड फ्रॉम सेकेंड ईयर इटसेल्फ आई हैड दैट कॉन्फिडेंस कि एक बार अगर मेरा प्रीलिम्स निकल जाए, तो आई हैव लॉट ऑफ कंटेंट रिगार्डिंग मेंस एंड आई कैन कवर माय मेंस in my first attempt itself. So I was that much confident based upon my notes. But what I would suggest ki while preparing your own notes, you should not go for every basic content ya fir every minute detail. It's just you should make just kind of running notes, that I would suggest. तो ऐसा मेरा सेकेंड ईयर था। एंड देन इन द थर्ड ईयर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी में क्या होता था कि व्हाट आई यूज्ड टू डू, पहले तो आई यूज्ड टू रीड माय बेसिक थिंग्स जो मैंने अपने कोचिंग में ली थी। उसके बाद आई यूज्ड टू फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको यूपीएससी पास करना है, तो उसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, ये कोचिंग करो, यहाँ से अच्छा कंटेंट मिलेगा। अगर आपको बेस्ट कंटेंट चाहिए, तो व्हाट यू कैन डू इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हर टॉपर ने आज तक यही चीज कही है। बहुत सारे लोग हैं जो इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। मैंने खुद ने भी नहीं लिया था, एंड दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू क्लियर इट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। मैंने पहले अटेम्प्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूरी तरह इग्नोर किया था। तो आई वुड सजेस्ट कि यू शुड गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने के बाद अगेन यू नीड टू गो टू योर बेसिक नोट्स, उनको अच्छे से रिवाइज करो, एंड देन यू कैन मेक फिर उसका क्रिस्पी वाला नोट्स। तो दिस इज हाउ आई स्टार्ट, दिस इज हाउ आई हैव डन। फिर उसके बाद आई वेंट फॉर माई फर्स्ट अटेम्प्ट, और इट वॉज काइंड ऑफ मोस्ट हॉरिबल एक्सपीरियंस आई वुड सजेस्ट, क्योंकि उस एक्सपीरियंस में मेरे को पता चला कि जितना भी प्रिपरेशन मैंने किया है वो सब एकदम ओवर कॉन्फिडेंस के बेसिस पे था। यूपीएससी इज नॉट जस्ट अबाउट कंटेंट, इट्स अबाउट क्वालिटी। तो प्रीलिम्स में जाने के बाद मेरे को पता चला 2022 में आई गेव माय फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड आई वाज सो मतलब डिस्टर्ब, क्योंकि आई वाज नॉट एबल टू क्लियर इट। प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हो पाया था, तो फिर तब मेरे को पता चला कि आई नीड टू वर्क अपॉन माय मिस्टेक्स। So most importantly, what I have learned through coachings as well as from my first experience of prelims, ki you have to find your own mistakes first, and then you have to work upon them. So instead of going for lot of resources, instead of going for lot of coachings, you first have to think about your own mistakes. You need to enlist those mistakes and you need to rectify them, so that it would be more convenient for you to work upon them. सो फर्स्ट थिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, लाइफ का पहला फेलियर था। उसके पहले हम जिंदगी में कभी फेलियर हैंडल नहीं कर पाते हैं। इवन आई वाज सो डिस्टर्ब्ड। आई वोंट से कि मैं एकदम मतलब चिल थी, या फिर मैंने बहुत अच्छे से वो या फिर ग्रेसफुली अपना वो फेलियर हैंडल किया था। आई वोंट सजेस्ट दैट, या फिर आई वोंट से सच थिंग। बट फिर देन आई लर्न कि अगर आप किसी भी फील्ड में जाओगे, तो आपको यू नीड टू लर्न हाउ टू हैंडल द फेलियर, क्योंकि वो लाइफ का पहला फेलियर था। मैंने अपने बहुत सारे स्पीचेस में भी जो लोग भी मेरे को फॉलो करते हैं उन्होंने भी देखा होगा, मैंने भी कहा था कि उस टाइम आई वाज सो डिस्टर्ब, बट एक शायरी थी जो मेरे दिल में आई थी, जो आज भी मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। इट वाज कि कुछ देर की खामोशी है, फिर से शोर होगा, और का वक्त होता है अपना तो दौर होगा। So that thought kept me motivated कि let's not think about our failure much, but let's just work upon our mistakes, and अगेन फिर से हम मैदान में उतरेंगे और फिर और जोरों शोरों से पढ़ाई करेंगे। और उस सेकेंड अटेम्प्ट के बाद से जो मैंने प्रिपरेशन किया, दैट इज काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी दैट हैज वर्क फॉर मी वेरी वेल। सो आई वुड सजेस्ट कि सो आई वुड
go with that strategy itself. पहले मैंने स्टार्ट किया था, पहले मैंने प्रीलिम्स से स्टार्ट करूंगी. तो प्रीलिम्स के लिए व्हाट आई कैन सजेस्ट कि नॉट एवरीथिंग यू हैव टू लर्न. You just have to learn those things that have been repetitively appeared in UPSC के prelims previous year questions में. जैसे लेट्स कंसिडर कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आप हर 2 साल के बाद उस पर क्वेश्चंस देखेंगे, बट प्रॉब्लम इज कि वी डोंट टेक दैट मच ऑफ एफर्ट्स कि हम वो डीपीएसपी को लर्न करें. हर कोई कहता है कि यूपीएससी में हर रिसोर्स इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी आस्क एवरीथिंग अंडर द सन, बट दैट इज नॉट द केस. यू जस्ट हैव टू फाइंड दोज इंपॉर्टेंट एरियाज, दोज इंपॉर्टेंट थिंग्स, एंड यू जस्ट हैव टू लर्न दोज थिंग्स. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि प्रीलिम्स के प्रिपरेशन से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, उन क्वेश्चंस को एनालाइज करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि कौन से सब्जेक्ट है जो इंपॉर्टेंट है और कौन से सब्जेक्ट है विच यू कैन ignore. Not subject as such, but the topics that you can ignore. Let's consider if we are talking about polity. So polity में directive principles, fundamental rights, everything is important, and it's not just important for prelims, but it's also important for mains. So what I would suggest कि previous year questions पिछले 10-12, मैंने तो 1992-95 से questions को analyze किया था, और उस questions में से important themes identify की थी, और फिर उन themes को मैंने अच्छे से learn कर लिया था. That was my first thing that I have done for prelims. And second thing that I would suggest ki don't go for multiple resources and multiple test series. Just pick one important resource that you feel which is comfortable for you, और उस पर्टिकुलर रिसोर्स को रिपीटेटिवली रिवाइज करना इज द इम्पॉर्टेंट की. दैट्स व्हाट आई फील. फर्स्ट थिंग, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे कोचिंग, इनका करंट अफेयर्स अच्छा है, इनका कंटेंट अच्छा है, तो उसके पीछे भागते हैं. पर मेरा ऐसा था कि एक पर्टिकुलर एक छोटा सा बैग है जिसमें मेरा पूरा यूपीएससी का रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं. तो डोंट गो फॉर मल्टीपल रिसोर्सेज, क्योंकि I feel कि problem of plenty raises plenty of problems. So instead of going for multiple resources, pick one and revise it repetitively. उसमें भी revision का strategy ऐसा होना चाहिए कि first you will go for plain reading. Second reading में what you can do कि you can just highlight it with your pencil. एंड इन थर्ड रीडिंग विच यू फील कि इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो आप भूल जा रहे हो, तो उसको पेन से हाईलाइट करो. एंड देन लेट्स कंसिडर कि 4 बार डीपीएसपी रीड करने के बाद भी यू आर नॉट एबल टू लर्न देम, तो फिर उसमें से भी 4 इंपॉर्टेंट डीपीएसपी जो हर बार पूछे जा रहे हैं उनको बॉक्स करके रखिए. और फिर उसके बाद भी इफ यू आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट एवरी इंपॉर्टेंट माइन्यूट डिटेल, देन यू कैन just note down those things that you have mentioned in those box. So this is how you can make your revision wala strategy, and it works very. Then if prelims में और important thing क्या होता है कि it's not just about content coverage. Second important thing, you have to recollect all your knowledge, and how you can do it. So you can go for sectional test as well as full length test. So I would suggest कि it's not about number of tests, it's about कि how you are learning and what you are learning from your mock test वाला mistakes. So in my first attempt, I was not I was not able to join any test series, and that was the major mistake that I have committed in my first attempt. And I would suggest कि don't go for that mistake. You guys can skip that mistake. So I won't suggest specific test series as such. It's not about number of test series, and it's not about content of that test series, just about syllabus coverage. सेक्शनल टेस्ट से आपको जो फायदा होता है वो यही होता है कि आप उसमें से ज्यादा कंटेंट कवर कर पाएंगे, फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड थिंग, यू कैन आइडेंटिफाई दोज एरियाज जिसमें आप वीक हो. यूपीएससी के प्रिपरेशन में आई फील स्वॉट एनालिसिस इज मस्ट. कैसे? तो फिर जैसे आप सेक्शनल टेस्ट देते रहते हो तो आपको पता चलता है कि पॉलिटी में यू हैव गुड कमांड, जिसमें सबकी कमांड अच्छी होती है. ज्योग्राफी में यू कैन फाइंड कि यू हैव गुड कमांड, बट व्हेन इट कम्स टू आर्ट एंड कल्चर यू विल फाइंड कि आप कितना भी पढ़ लो, यूपीएससी विल फाइंड अनदर डिफरेंट एरियाज जिसमें से यू कैन नॉट टैकल द क्वेश्चंस. सो व्हाट यू कैन डू कि जो आपके स्ट्रेंथ है वो सेक्शनल से कवर कीजिए, और जो आपको लगता है कि जिस पार्ट का कंटेंट यू कैन नॉट कवर, तो उसको बस प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट थीम्स को रिवाइज कर लीजिए. दैट आई वुड सजेस्ट. Another thing about mock test is most of the people ask ki how many questions or how many test series we should go for. So I would suggest ki 20 या फिर 15 to 20 test is important. एंड उसमें से भी अगर 10 फुल लेंथ टेस्ट आपने दिए तो आपको ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक्स भी आइडेंटिफाई हो जाएंगे.
मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे 5 से 6 फुल लेंथ टेस्ट दिए थे, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स। तो मैंने उसमें से जो एनालिसिस किया था दैट वाज मच इम्पॉर्टेंट। तो एनालिसिस हाउ यू कैन डू, तो फर्स्ट थिंग यू कैन फाइंड कि आपको एकदम सिली मिस्टेक्स है, जैसे करेक्ट इनकरेक्ट इग्नोर हो गया, या फिर आपने वो जो हाइलाइटेड पार्ट है, आपका फोकस एरिया है, वो आपने मिस कर दिया। तो ऐसी चीजों को आपको फोकस करना है फर्स्ट थिंग टेस्ट सीरीज में। और सेकेंड थिंग आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे कौन से एरियाज है जो आपको रिपीटेटिवली मिस्टेक्स दे रहे हैं। जैसे मेरे को याद है कि मैं कितनी भी बार जीडीपी जीएनपी याद करूँ, मेरे को मतलब जब भी मैं एग्जाम में वो क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ हर बार गलत हो जाता है। तो फिर आई हैव फाउंड कि ये मेरा वीकनेस है एंड आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दिस, क्योंकि इसको कितने भी लेवल ऑफ एक्सटेंट पे मैं प्रिपेयर करूँ, आई एम गोइंग रॉन्ग इन दैट पर्टिकुलर पार्ट। तो मैंने वो अपना वीकनेस कंसिडर करके छोड़ दिया है। ऑन द कॉन्ट्ररी व्हाट यू कैन डू, जो आपका स्ट्रेंथ है उस पर आप वर्क कर सकते हो। इफ यू आर एबल टू, जो स्पेशली जो फ्रेशर्स है उनको आई वुड सजेस्ट कि इफ यू कुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन एवरी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, then it's very well, and it would be very helpful for you to prepare for your prelims. Another important segment in prelims is CSAT. I don't think I'm right person to convey anything about CSAT, because मेरा भी 80 मार्क्स हमेशा रहता है, उससे ऊपर नीचे कभी जाता है। मेरे भी 3 मतलब सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया, उसमें आई गॉट 80। फर्स्ट में भी मेरे को 78 मिला था, बट जीएस में मेरे को बहुत ज्यादा कम मार्क्स आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो सीसैट में आई फील कि यू शुड हैव गुड कमांड ओवर वन पर्टिकुलर सेक्शन। जैसे मेरा था कि सीसैट में से पैसेज जैसे कॉम्प्रिहेंशन है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कितना भी टफ हो जाए, आई एम वेरी मच श्योर कि उसमें मेरा अच्छा एक्यूरेसी आएगा। और मैथमेटिक्स में भी आई एम वेरी मच श्योर कि कितना भी इजी पार्ट आ जाए, आई वोंट बी एबल टू डू दैट। तो वो मेरा स्ट्रेंथ और वीकनेस, इसका एनालिसिस बहुत अच्छा था। तो व्हाट आई हैव डन, प्रीलिम्स में मैंने सीसैट में ऐसा किया था कि अगर लेट्स कंसीडर वी हैव 10 टॉपिक्स फॉर मैथमेटिक्स, तो उसमें से 5 थे जो मैंने अच्छे से रट लिए थे, और उनको करने के लिए मेरा बेस था अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस को मैंने अच्छे से एनालाइज कर लिया था, और उन 5 टॉपिक के लिए कुछ अच्छा सा स्ट्रैटेजी डिफाइन कर लिया था, या फिर लेट्स कंसीडर मैंने उनके लिए कुछ फॉर्मूलाज या फिर कुछ चीजें थी जो कोचिंग के थ्रू मैंने कर ली थी, जैसे परमिटेशन कॉम्बिनेशन, या फिर ऐसे कुछ टॉपिक है जिनको मैंने यूट्यूब से कवर कर लिया था। और फिर कॉम्प्रिहेंशन के लिए कमांड लेने के लिए मैंने मैक्सिमम यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एंड इफ टाइम परमिट्स यू कैन गो फॉर अनदर लाइक स्टेट सर्विसेज वाले क्वेश्चंस को भी आप रेफर कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर माय प्रीलिम्स। आई फील कि प्रीलिम्स सबसे बड़ा चैलेंज है। आज भी मेरे को अगर कोई प्रीलिम्स के लिए बैठने को बोले तो आई वुड से कि डोंट गो फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ होता है, दैट्स व्हाट आई फील। बट एक बार अगर आपका प्रीलिम्स निकल जाए ना, तो फिर उसके लिए मतलब उस प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए यू हैव गुड स्ट्रैटेजी। बस आपको प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन बुकलेट लेना है। सेकंड थिंग, यू हैव टू गो फॉर 10 to 20 मॉक टेस्ट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू कवर एंटायर कंटेंट विद स्वॉट एनालिसिस की। ठीक है, this is my strength and this is my weakness. So this is how you can go for prelims. Now the most important part is about mains, and I feel कि बहुत सारे लोगों को इस particular section में ही ज्यादा confusion होता है। Reason being कि बहुत ज्यादा resources market में available है, and we are just like confused कि इसमें से कौन सा पिक किया जाए, किसको ज्यादा से ज्यादा फॉलो किया जाए। तो आई वोंट सजेस्ट कि ऐसे पर्टिकुलर मतलब कोचिंग को चाहिए या फिर इनका पर्टिकुलर कंटेंट रेफर कीजिए। व्हाट आई वुड सजेस्ट कि मेंस के लिए फर्स्ट तो जो आपके स्टैंडर्ड रिसोर्सेस है, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, वो तो रेफर करने ही चाहिए। ज्योग्राफी के लिए स्पेसिफिकली एनसीईआरटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट जीएस के लिए व्हाट आई हैव फाउंड कि जीएस के लिए ना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थीम्स आइडेंटिफाई करना। guys please listen to this particular thing very carefully. फर्स्ट थिंग, मेरा जो जीएस के लिए स्ट्रैटेजी रहा है वो ये था कि मैंने कभी जीएस के लिए पहले रिसोर्सेज यूज नहीं किए। जैसे लेट्स कंसीडर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनल सिक्योरिटी, सो व्हाट आई हैव डन कि आई हैव टेकन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ लास्ट 10 years, देन आई हैव फाउंड कि इंटरनल सिक्योरिटी में 9 to 10 थीम्स है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, या फिर रिलेटेड मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर सिक्योरिटी। तो वो पर्टिकुलर थीम को आइडेंटिफाई कीजिए। अगेन सेकेंड स्टेज इज व्हेन यू आइडेंटिफाई द थीम, देन यू कंसिडर, लेट्स कंसिडर वो थीम मतलब ही आपका सिलेबस होता है। फिर वो सिलेबस को लेने के बाद व्हाट यू कैन डू, सेकेंड थिंग इज अबाउट identifying the dimension of that particular theme. Let's consider when it comes to terrorism, they'll ask you sources of funding.
when it comes to left wing as extremism, they'll ask you what are the challenges and what are its solutions. उस पर्टिकुलर प्रोमिनेंट एरिया में ही लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ज्यादा क्यों है, उसके रीजंस क्या है और उसके ऊपर सोल्यूशन क्या है, या फिर उसके ऊपर इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स क्या है.